Good morning, all of you. Have a nice day. Today, I am going to introduce how to write a letter in perfect way and in a standard way. आइए आज हम सभी लेटर राइटिंग जो कि लेखन क्षमता को विकसित करता है को लिखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ कैन वी राइट a letter in the best way so that we can ensure the good marks in the examinations. 11 अथवा 12 कोई भी हो, सब में एक लेटर आपको पूछे जाते हैं. बिफोर कोरोना पैंडमिक इट वाज ऑफ 10 मार्क्स. जो लेटर से प्रश्न पूछे जाते थे वो 10 मार्क्स के पूछे जाते थे, लेकिन हाल में सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होने के कारण अब इसे 5 मार्क्स में ले लिया गया है. तो आइए समझते हैं व्हाट इज लेटर राइटिंग. सबसे पहले समझते हैं कि लेटर राइटिंग है क्या. व्हाट इज लेटर राइटिंग. At first, we have to understand letter writing is an interesting task, that is a skill among all a skill. Writing itself is a skill. Writing is an important skill of learning. राइटिंग लेखन क्षमता जो होती है वह अपने आप में एक स्किल है. एंड राइटिंग इज द लास्ट स्किल अमोंग ऑल स्किल्स. LSRW. तो सर देखेंगे हम लोग LSRW. इसके बाद हम लोग जाएंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, एंड आई विल राइट अ लेटर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड also. That's why as first we have to understand LSRW. This is listening. L stands for listening. देखेंगे वी हैव 4 स्किल्स. Listening. S for speaking. This is also a skill. R stands for reading. And the last one, which is nothing but W, that is writing. And I am today talking about writing a skill. This is an important skill among all skills. If your listening capacity is better, speaking is better, reading is better, then your writing will be better. यदि आप पहले से LSRW आपके अच्छे हैं, if you are an expert of listening, speaking and reading, then your writing will be better. Because this is the product of our mind. Writing जो है वो एक्सप्रेशन का जरिया है. This is a man. If he wants to express anything, suppose he is going to express anything, he can express his words or ideas 2 ways. First one about स्पीकिंग. सबसे पहले क्या है, वो अपने जो माइंड की कोई भी बातें हैं तो स्पीकिंग के जरिए जारी कर सकता है. एंड सेकेंड वन फ्रॉम राइटिंग, यानी लिखकर और एक बोलकर. दो जरिया है जिससे वी कैन एक्सप्रेस आवर ओन आइडियाज टू अदर्स. यदि हम कोई भी बात अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो एक बोलकर और दूसरा लिखकर. तीसरा है क्या, हमारे पोस्चर एंड जेस्चर के माध्यम से भी हम एक्सप्रेशन करते हैं. लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बोलकर करते हैं अपनी बातों को, अथवा राइटिंग के माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं. दैट्स वाई राइटिंग इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज द फैक्ट. राइटिंग, यहाँ पे हम लोग इसको नोट करते हैं, राइटिंग इज आ means of communication. This is the standard way of communication. All formal and informal messages are in written ways. देखेंगे किसी भी कार्यालय में, किसी ऑफिसेज में जो भी बातें रखी जाती हैं उसको रिटर्न वेज में रखा जाता है. दैट्स वाई writing is an important task and our writing capacity should be up to date and
comprehensible as well as understandable. Next, now writing is the means of communication. Now go ahead for the next task. इतना दूर में आप समझ चुके होंगे कि राइटिंग है क्या, और राइटिंग इज अ स्किल एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल. Everyone should know how to write a letter. That's why Bacon has rightly said, I am going to highlight one quotation given by Bacon. Writing makes a man perfect. Writing makes a man perfect. देखेंगे बेकन, writing makes a man perfect. I am going today talking about writing skill. Writing makes a man perfect. लिखना मनुष्य को पूर्ण बनाता है. It means to say that if you know how to write, it means you know all the necessary skills, which is very compulsory for writing. यानी लेखन क्षमता तभी पूर्ण हो सकती है जब आप में श्रवण करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, रीडिंग की क्षमता हो, तभी आप इसको राइटिंग में बदल सकते हैं. If there are a lot of things in your mind, you can express a lot of things with the help of writing or with the help of expression or speaking. This is the way. That's why Bacon has rightly said, writing makes a man perfect. Now, go for next types of letters. These are very important for all students of 10+2 level and 11. Now, I am going to talk about types of letter. Types. Now, I would like to change the color. This is types of letter, that is letter. In class 11 and 12, we have been given 5 types of letters and they are 11 और 12 में 5 प्रकार के लेटर्स होते हैं. आइए देखते हैं वन बाय वन इन स्टैंडर्ड वे. तो फर्स्ट वन, लेटर राइटिंग, दैट इज 1, 2, 3, that is 4, that is 5. Number 1, official letter. Official letter. Now I would like to describe. Every student must know the types of letters so that they can understand in the just way and they can handle क्वेश्चन इन द एग्जाम. यदि आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को त्वरित गति से समझना चाहते हैं कि यह लेटर किस प्रकार का है और किसे लिखना है, तो आप यदि काइंड से जानते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान कर सकते हैं और आसानी से आप लिख भी सकते हैं. फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल लेटर. द लेटर विच इज रिटन टू ऑफिसेज, दैट इज चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, HM एंड एनी डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंटल लेटर, दैट इज ऑफिशियल लेटर. इसके भी अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं, हम लोग आगे में देखेंगे. सेकेंड वन, बिजनेस लेटर. दिस इज अबाउट बिजनेस लेटर. द लेटर विच इज रिटन फॉर बिजनेस पर्पस. दैट्स वाई इफ यू वांट टू ओपन अ बिजनेस शॉप, then you have to write business letter. I will write in the next time one by one. Next one is letter to editor. Letter to editor. This is an important kind of letter and this is a unique type of letter writing for student deserving for class 11 and 12. वैसे साथ जो 11 12 हैं उनके लिए नया होता है. और लेटर टू एडिटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. मैं आपको बताते चलूँ कि लेटर टू एडिटर अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं
आपका 11 आर्ट्स 12 आर्ट्स का 15 मार्च 2023 को, उसमें भी लेटर टू एडिटर से पूछा गया है। आइए उसको हम लोग आगे चल के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन इज अबाउट पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर, नेक्स्ट वन, next, that is personal, the letter which is written for personal purpose, that is letter to mother, letter to father, letter to friend, letter to colleagues, friendship for purpose and other purpose, that is personal letter. Official letter, business letter, letter to editor, personal letter, and the last one is nothing but job letter. This is a job letter. Suppose if you have completed BA, B.Ed, MA, B.Ed, etc. degrees you have received and you are in a search of job, then you have to write a job letter. That's why every student who are in search of a job, they must know how to write a job letter. I will try to write a letter. I would like to present a letter for you all so that you can all write in better way and just you can ensure गुड मार्क्स इन द एग्जाम। दैट इज, हिंदी में समझ लेते हैं, लेटर राइटिंग 5 प्रकार के होते हैं। ऑफिशियल लेटर जो कार्यालय को लिखा जाता है, बिजनेस लेटर जो व्यापार बिजनेस के लिए लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर जो कि संपादक के पास लिखा जाता है, न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया भी है, इसको हल भी करेंगे। पर्सनल लेटर जो व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं अपने मम्मी डैडी भाई बहन दोस्त इत्यादि के पास लिखे जाते हैं। जॉब लेटर, बहुत पढ़ लिखने के बाद यदि आप जॉब की तलाश में हैं, एक अच्छे नौकरी की तलाश में हैं, तो हाउ टू राइट जॉब लेटर, दिस इज़ वेरी कंपलसरी। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक लेटर, लेटर टू एडिटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और अभी हाल ही में 15 मार्च 2023 को पूछा गया है। चलिए सबसे पहले उसी को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई किया जा सके। इसके बाद आगे एक से बढ़कर एक लेटर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। समरी, letter is an important task, letter is an important skill. Every student must know how to write a letter and how to present a letter and which type of important things should be kept in mind while writing a letter, because writing makes a man perfect and every exam is conducted in written ways. That's why our writing capacity should be special and up to date. There are 5 kinds: official letter, business letter, letter to editor, personal letter, and job letter. Now I would like to write a question on the electronic board, that is, and I would like to give the standard way of answer of the written questions on 15th March 2023 for you all. May I rub this now? और जितने भी छात्र हैं सभी से होप उम्मीद करते हैं कि आप 5 काइंड्स को जानें, अपने कॉपी में नोट करेंगे। प्लीज राइट इन योर कॉपी। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू राइट अ क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी यू कैन सी दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 15th March 2023, arts category, that is ENA, English arts जो पूछा गया है और तारीख था 15th March 2023, इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश। आइए देखते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है और व्हाट इज द राइट आंसर एंड हाउ टू राइट ए लेटर। मैं बारीकी से आपको बताने का प्रयास करूंगा हाउ टू हैंडल, हाउ टू राइट ए लेटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ Ranchi expressing your views against the indiscriminate use of loudspeakers and the noise created by them in your locality. You are Ravi Rasmi of house number 15 Harmu Housing Colony, Ranchi.
और नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन है, जो कि एक मैगजीन में लिखना है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं क्वेश्चन ही लिखने जा रहा हूँ। राइट ए लेटर टू द एडिटर। राइट आ लेटर टू द एडिटर। अभी हम लोग देख चुके थे एडिटर भी एक क्या है, लेटर राइटिंग के। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि लेटर में क्या दिया गया है। दैट्स वाई राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ। रांची एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेसिंग। प्रत्येक का लाइन बाय लाइन इसका हम लोग हिंदी भी करेंगे। योर व्यूज। योर व्यूज अगेंस्ट दी against the indiscriminate indiscriminate use of loudspeaker loudspeakers and the noise created by them in your city. You are Ravi. Your Rasmi. Of house number 15, Harmu Colony, Ranchi. This is the question. Suppose this is the question. Once again, I would like to describe this question so that any student can understand what is the question is saying and how to write a letter in better way. देखेंगे सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों में समस्या आती है कि वो क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें से कुछ हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, अथवा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप विषय वस्तु नहीं समझ पाते हैं और किसे लिखना समझ नहीं पाते। तभी आपको मैंने बताया देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड दिस लेटर बिलोंग्स टू लेटर टू एडिटर। देख लेंगे यहाँ पे कि लेटर टू एडिटर इंडिकेट किया गया है। और अभी आपने देखा 5 काइंड्स में से लेटर टू एडिटर एक ऐसा पत्र जो संपादक के पास लिखा जाता है, पत्रकारों के पास लिखा जाता है। द हेड ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इज लेटर टू एडिटर। ये शब्द है, जैसे हम देखेंगे समझ जाएंगे कि एडिटर के पास लिखा जा रहा है और ये संपादक के नाम से एक पत्र लिखा जा रहा है। क्वेश्चन आगे, राइट ए लेटर टू द एडिटर द टेलीग्राफ। पेपर का नाम क्या है? टेलीग्राफ। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्रॉनिकल, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन मैगजीन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पेपर का नाम क्या है? द टेलीग्राफ। दूसरा आंसर आ चुका है। योर व्यूज अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर। देखेंगे विषय वस्तु हमें प्राप्त हो गया। तो मैं सभी विद्यार्थियों को सलाह देता हूँ कि सबसे पहले जस्ट अंडरगो द क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, आपको विषय वस्तु पता चलता है। यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर मीन्स ध्वनि विस्तारक यंत्र। एंड द नॉइस क्रिएटेड बाय देम। और जो विभिन्न प्रकार के साउंड सिस्टम आ गए हैं उसकी वजह से होने वाली ध्वनि जो होता है नॉइस, शोरगुल के बारे में लिखना है। इन योर सिटी यू आर रवि और रश्मि। यदि आप बॉयज़ हैं तो आप रवि हैं, और यदि कोई गर्ल्स है, फीमेल है, तो वो क्या? रश्मि है। हाउस नंबर भी, आपका एड्रेस भी दिया हुआ, आप कहाँ से लिख रहे हैं? हाउस नंबर 15, हरमू कॉलोनी, दोनों एक साथ, रांची से। पूरे को समरी एक बार समझते हैं कि आप
जो है रवि अथवा रश्मि है, जो कि हाउस नंबर 15 हरमू कॉलोनी रांची में रहते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एक संपादक के पास पत्र लिखिए, और भी पेपर का नाम है द टेलीग्राफ। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर, आज की तारीख में समाचार देखेंगे लाउड स्पीकर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से नॉइज ध्वनि प्रदूषण बहुत मात्रा में बढ़ गई है। इसका वर्णन करते हुए और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स जो है कि गलत तरीके से जो उपयोग किया जा रहा है लाउड स्पीकर का, क्योंकि उस पर बैंड भी है, इसलिए इसका एक लेटर तैयार करें और अपने मंतव्य को लिखते हुए एक संपादक के पास, द टेलीग्राफ के संपादक के पास एक पत्र तैयार करें। आइए हम लोग एक लेटर लिखने का प्रयास करते हैं, इसका आंसर सॉल्व करते हैं। और ध्यान देंगे यह प्रश्न ENA इंग्लिश स्कोर के लिए जिन्होंने आर्ट्स रखा था 15 मार्च 2023 को पूछा जा चुका है इंग्लिश स्कोर में। ओके, थैंक यू। नाउ आंसर। May I rub this? Now this board is ready, is being made clear for the answer. Please follow me. All of students, I request from all of students to take down. Take down means अपने कॉपी में उतार लें। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रोवर्ब्स हैं, जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं आगे चलकर आपके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट जो प्रोवर्ब्स हैं, इंपॉर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेजेस है देने का प्रयास करूंगा। चलिए आंसर देखते हैं, एंड प्लीज फॉलो मी। एट फर्स्ट, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप मैं लिखने का प्रयास करूंगा ताकि आप उसे समझ भी सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम सेंडर्स, लिखने वाले का एड्रेस होता है, जो लिख रहा है, कहाँ से लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है। तो सबसे पहले आप लिख रहे हैं हर हाउस नंबर, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सेंडर एड्रेस होता है, इसलिए चलिए ये बोर्ड है, दिस इज सपोज आंसर आप लिख रहे हैं। आंसर सीट, सबसे पहले सेंडर नेम, तो हाउस नंबर आपको दिए गए हैं 15, हाउस नंबर, हाउस नंबर 15। अब कहाँ से लिख लें, हरमू कॉलोनी, हरमू कॉलोनी। कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप रांची से लिख रहे हैं। Very good. This is the, and this point has been taken from the questions. You have to also take this material from your questions. Next, date. Suppose 15th March 2023. Suppose you are writing on the same date 15th March 2023, तो कोशिश करेंगे कि सेंडर एड्रेस के बाद जब आप दें, आ तो कॉमा यहाँ दे सकते हैं अथवा यहाँ दे सकते हैं, दो के बगल में। नेक्स्ट, किसके पास लिख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू द एडिटर, टू द एडिटर। आपको प्रश्न में पढ़ने के बाद पता ही चल गया होगा कि किसके पास लिखना है, तो राइट ए लेटर टू द टेलीग्राफ, द एडिटर, द टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ, संपादक के पास चला गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सब्जेक्ट, and every step is very important one and marvelous. If you are going to leave, certainly you are going to lose your marks. यदि कोई भी स्टेप आप छोड़ते हैं तो समझिए कि आपके अंक कटने वाले हैं। तो सबसे पहले टू द एडिटर द टेलीग्राफ। अब देखेंगे विषय वस्तु क्या लिखे हैं, जो भी बच्चे होते हैं हमारे 11 12 अथवा और किसी के, सबसे समझता है कि क्या लिखें, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, दीज आर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे तो लिखा हुआ है द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इसको कलर चेंज करते हैं सब्जेक्ट मैटर के लिए, द इनडिस्क्रिमिनेट, द इनडिस्क्रिमिनेट
use of loudspeakers. The indiscriminate use of loudspeakers. ये आप प्रश्न से ले सकते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में जो समस्याएं होती है और किनके पास लिखना है ये हमेशा दिया होता है, सब्जेक्ट मैटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. दैट्स वाई एवरी स्टूडेंट शुड राइट इन अ स्टैंडर्ड वेज एंड क्लियर कट इंफॉर्मेशन शुड बी मैड. नाउ गो फॉर नेक्स्ट. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4. पहले हम लोग क्या लिख चुके हैं? सेंडर्स एड्रेस. आपको कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में. सबसे पहले क्या है? सेंडर्स एड्रेस, कौन लिख रहा है. नेक्स्ट एक डेट स्टैंडर्ड होनी चाहिए. दूसरे में किसके पास लिख रहे हैं, तीसरे स्टेप में. चौथे में क्या है? विषय वस्तु क्या है. एक अगला हम लोग सैल्यूटेशन लेंगे सर अथवा मैडम, उसके बाद हम लोग विषय वस्तु में जाएंगे. नेक्स्ट, may I rub this? So these are important facts every student should follow. Otherwise, you are not going to ensure good marks in the exam. That's why. Next step is about sir. This is salutation, or you can write madam also. Now I am, suppose I am, now I am going to write a letter to the editor. That's why every word should be suitable and perfect and clear one. जो भी बात लिखेंगे क्लियर कट होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए. थ्रुग द सर के बाद थ्रुग, दिस इज द बॉडी ऑफ द लैंग्वेज. सो मैं आप लिखने जा रहा हूँ. लेटर का क्या है? एक बॉडी होता है, विषय वस्तु सारी इसी में रहेगी. आप जो बोलना चाहते हैं इसी में समाहित होगा. थ्रुग द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authority towards the indiscriminate use of the loudspeakers, and the noise creation एट, आपको एड्रेस दिया गया था कहाँ पर, किस जगह? तो एट हरमू कॉलोनी इन रांची सिटी, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप इन विच यू आर राइटिंग थ्रू द कॉलम्स और स्टीम न्यूज़पेपर. आपके समाचार पत्र के विशेष स्तंभ से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, यानी संबंधित अधिकारियों का अथवा विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. टुवर्ड्स द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी ध्वनि के गलत प्रयोग अथवा जरूरत से ज़्यादा प्रयोग की ओर. एंड द नॉइज क्रिएशन, और जो ध्वनि प्रदूषण है, एक सकते हम कहते हैं कि ध्वनि का जो गलत तरीके से जो शोरगुल है, क्रिएशन जो निर्माण हो रहा है एट हरमू कॉलोनी इन रांची. पूरे को समरी को हिंदी में समझते हैं कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं हरमू कॉलोनी रांची निवासी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के गलत प्रयोग यानी दुरुपयोग और ध्वनि बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण की ओर आपका ध्यान, संबंधित पदाधिकारियों का ध्यान आपके समाचार पत्र के माध्यम से आकृष्ट करना चाहूँगा. दिस इज फर्स्ट स्टेप.
And now you can change paragraph, whatever you want to write. One, if you want to give some ideas, you can write here. Now go for next step. One step is more. Now I am going to change paragraph, where you can write your ideas, whatever you want to write, you can place their ideas. Now paragraph I have changed. That is Harmu. Harmu is an important place of Ranchi, where many learning points and institutions institutions are situated. A lot of students and official personnel live here due to indiscriminate indiscriminate use of loudspeaker, DJ systems, and noise creations. The residents are the worst sufferers. Worst sufferers. The sound decibel is very high. This is very harmful to all. The old men and women are suffering. Are suffering very much. There are two temples here where since morning, दिस इज योर व्यूज वॉट एवर यू आर राइटिंग. देखेंगे यहाँ जो लिख रहे हैं वो आपके विचार हैं. वॉट आर यू फीलिंग्स हेयर वेयर सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग
लाउड स्पीकर साउंड come out which disturb in living and sleeping. योर आइडियाज, यहाँ पे देखेंगे आपने लिखा है कि सुबह से शाम तक यह एक ऐसा जहाँ पर रेडियो के साउंड बाहर आते हैं जिसकी वजह से रहने और सोने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके विचार क्या हैं? दी साउंड, आपको एक वार्निंग भी देना है जिसे आप इसको सलाह के तौर पर देख सकते हैं, जो कि हमें जरूर देना चाहिए। दी साउंड सिस्टम should be sound system should be banned. Your sound limit or sound limit should be maintained. Maintained strictly. Strictly. That's why the last, I hope, next that is, I hope this public, क्योंकि यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी, दिस पब्लिक कंसर्न will be published in your newspaper for the betterment newspaper and hope that adequate action would be taken against the indiscriminate use of loudspeaker in this city. देखेंगे लास्ट में जो आपको लिखे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए से पूछा जाता है, दैट इज योर्स ट्रूली। यदि आप किसी लेटर लिख रहे हैं एडिटर के पार, तो कोशिश करेंगे योर्स ट्रूली लिखने वाले का नाम है। यदि आप बॉयज हैं तो रवि, यदि गर्ल्स हैं तो रश्मि। चलिए बॉयज को लेते हैं, योर्स ट्रूली रवि। और आप यहाँ आगे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, यदि चाहें तो आप लिख सकते हैं हरमू कॉलोनी रांची, और नहीं चाहते हैं तो फिर भी आपने ऊपर में लिखा है। जब लेटर स्टार्टिंग किया था आप देख लें तो आपने वहाँ पे लिखा था। तो रवि, हरमू कॉलोनी रांची, आप अच्छा से लिख सकते हैं हरमू कॉलोनी, डिजाइन कर्सिव लिख सकते हैं कॉलोनी रांची। अट्रैक्टिव वे में आप लिख सकते हैं हरमू कॉलोनी रांची। दिस इज द राइट आंसर फॉर राइट क्वेश्चन। तो ये आपके प्रश्न थे आज के, और ये आपके
सही आंसर भी हैं जो आपको मैंने लिखा है। आई होप यू विल राइट अगेन एंड अगेन and try to understand how to present, how to write a letter so that you can ensure good marks in the exam. Letter writing is not a tough task, but some techniques should be maintained while writing a letter. Now, go for the next. एक लेटर आपको लेते हैं जॉब लेटर, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अगले हिस्से में। चलिए इसको मे आई रब दिस, थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहे थे आपको वो ये है कि लेटर राइटिंग में ही प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। देखेंगे योर्स ट्रूली, ये जो है आपका पूछा जा चुका है कि क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बताने जा रहा हूँ, टाइम टेकिंग नहीं माना जाएगा इसको। योर्स ट्रूली देखते हैं। हाँ, देखेंगे आपको जो एग्ज़ाम में आर्ट्स में आ चुका है, लिख देता हूँ आर्ट्स ENA इंग्लिश कोर, एग्ज़ाम का डेट 15 मार्च 2023 में। ये प्रश्न और प्रश्न संख्या आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर आपका 2 है, देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। तो आपको एस लगा होना चाहिए, योर्स मतलब आपका, ट्रूली विश्वासी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आप देख सकते हैं जूम करके भी। क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन है ओर्स ट्रूली, ओर्स ट्रूली, ओर्स ट्रूली और लविंग ट्रूली। नहीं, व्हाट इज द राइट आंसर? ओर्स ट्रूली। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ से लिया जा सकता है कहीं से भी। इसलिए जब भी कोई चीज़ को पढ़ें तो डीप स्टडी से पढ़ने हमें चाहिए, और एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए डीप स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। आपने देखा इसी से किस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैंने आपका क्वेश्चन भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, और स्टूडी दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू अगेन। नेक्स्ट हम लोग एक लेटर है एक और लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हम लोग लेटर पर बात कर रहे हैं। इसके बाद एक स्टोरी लेके भी आएंगे आपका। चलिए मे आई रब दिस, आपको अभी तक जितना पढ़ाए थे उसमें से कौन सा प्रश्न पूछा गया ये भी आपका टच हो चुका है। धन्यवाद।